Any pregnancy which is after 35 years of maternal age is called late pregnancy. Let's say जब आप early 20s में होते हो, आप हर महीने का chance of getting pregnant is about probably 25 to 30% every month. Whereas if you're in your 30s, this falls to almost like 10%. And after 40s, it's 5% per month. आप determine करते हो whether you want to get pregnant or not and when you want to get pregnant. So it's not a fate, it is a choice. Hello and welcome to the second episode of Prega Talks, a special podcast brought to you by Prega News. आजकल हम देख रहे हैं कि लेट प्रेगनेंसीज काफ़ी हो रही हैं। लेट प्रेगनेंसी होती क्या है और ये कोई नया चलन है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आज के एपिसोड पे हमारे साथ है डॉक्टर माधु गोयल। शी इज़ द डायरेक्टर फोर्टिस फार्म GK2. थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। Thank you, Anisha. It's always a pleasure meeting you. मैम, लेट प्रेगनेंसी क्या होती है? हाउ डू यू डिफाइन इट? कौन सी एज के बाद प्रेगनेंसी को लेट प्रेगनेंसी कहा जाता है? Any pregnancy which is after 35 years of maternal age is called late pregnancy. Reason ये है कि 35 years के बाद हम कुछ special problems face करते हैं pregnancy में. तो वो हमारे लिए थोड़ी सी वैसी pregnancies होती हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, पेशेंट को ज़्यादा मेहनत करनी होती है. Is it a new trend that couples are considering having or starting their families a little later in life? See, this trend is rising. पहले क्या होता था जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, एनी प्रेगनेंसी जो 35 इयर्स के बाद थी वो बहुत कम होती थी. वेरी रेयरली यू वुड सी वन और पेशेंट हु वाज मोर देन 35 इयर्स ऑफ एज. बट आजकल तो इट इज़ वेरी कॉमन इन माई OPD. आई मीन almost every OPD you will have 2-3 patients who are more than 35 years of age. Not only 35, up to 40 के बाद भी patients आ रहे हैं with their first pregnancies. So the trend of late pregnancies is definitely increasing. आपको लगता है ये क्यों हो रहा है? मतलब क्या बदल गया मतलब फ्रॉम 20 years ago to now? एजुकेशन एक चीज़ है जो डेफिनेटली बदली है और जिसने शायद हमारा पर्सपेक्टिव चेंज किया है. Women have become more educated, more conscious, right? So now pregnancies are not a given. You know, पहले अगर आप देखो तो पहले ये होता था कि बस if you look at a woman, what would it be? Her role was to bear baby. हाँ, exactly. But now pregnancies are a choice. आप determine करते हो whether you want to get pregnant or not and when you want to get pregnant. So it's not a fate. It is a choice, right? So education definitely is something which has changed the perspective. Second thing is career. So I mean, it's a well-known fact that career clocks and biological clocks coincide. So it is generally considered कि अगर आप pregnant हो जाएंगे, you will be bypassed for a promotion, आपको अपना छुट्टी लेनी पड़ेगी, you will fall back in the race, sort of. So that is another reason, and people want to have pregnancies once, you know, they think they're ready for it. Third thing is the finances. It is becoming more expensive to raise children. इट इज़ नो लॉन्गर ठीक है बच्चा पैदा हो गया बाहर गली में खेल रहा है एंड यू नो पास वाले स्कूल में भेजो. एवरीथिंग इज रिक्वायर्स मनी नाउ. It's more aspirational. Even parenting is now more aspirational. Absolutely. And it's not just the women. Couples are deciding to have the pregnancy later in life when they are more financially settled and when they are ready for it. The other thing is also, I think, you know, it's relationship issues, right? So it's not just the late pregnancies, late marriages are also very common. No longer are we seeing women getting married in their 20s. It's more like either in the late 20s or probably early 30s. So once you get married or you choose a partner, why only marriage? Because nowadays there are all sorts of arrangements. You want to get settled with the partner before you decide to have children. So it's a late marriage, then you take about like a year, 2 years, 3 years, whatever, till you decide, okay, this is the right person to make partner. Next thing is also media. I mean, if you look at it from a movie set, which was primarily finding the right husband and having children, it's the women are being projected as CEOs and, you know, having a career path of their own. And that definitely impacts common people. Other, I think, is also, you know, availability of techniques
fertilization technique. So there are egg freezing and IVF which is available, which is enabling women to make that choice later on. So it's a multitude of factors, and that is the reason why late pregnancies are becoming very common. आप कह रहे हैं कि मतलब अब सरकार का ही नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ लिख के क्या करे, ये काम करना चाहती है, ख्वाहिशें होती हैं औरतों की बहुत। और मुझे लगता है कि अगर उनकी ख्वाहिश है कि वो पढ़ाई करे, एक्सेल करे, काम में भी अच्छा करे, कहीं ना कहीं मोस्ट वुमेन, बहुत औरतों को लगता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा हो, मेरी एक फैमिली हो। तो अगर लेट प्रेगनेंसी होती है या हम लेट प्लान कर रहे हैं तो उस पर फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, पड़ता है, बिकॉज बायोलॉजिकली स्पीकिंग आपकी जो फर्टिलिटी अर्ली 20s में होती है वो बाद में नहीं होती। तो आप कह रहे हो कि फर्टिलिटी क्लॉक एंड करियर क्लॉक इज नॉट रियली मैचिंग। कोइंसाइड इन द सेंस कि जब आपकी टाइम है प्रेग्नेंट होने का या Best बच्चे पैदा करने का, बेस्ट टाइम वो एक टाइम है जब आप करियर में राइज के बारे में सोचते हो। हाँ, तो ठीक है। मेथड नॉट मैच, लाइक एन ईदर और। यस, इट कैन बी एन ईदर और। पर इससे फर्टिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? सो लेट्स से जब आप अर्ली 20s में होते हो, आप हर महीने का चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट इज अबाउट प्रोबेबली 25 to 30% every month, whereas if you're in your 30s this falls to almost like 10%, and after 40s it's 5% per month. So you can see there is a gradual fertility decline. And why? ये क्यों होता है? एजिंग तो होती है ना, आपकी स्किन में अगर रिंकल्स हैं तो आपकी ओवरीज भी एज हो रही हैं। अच्छा। सो आपकी ओवरीज जब आप पैदा होते हैं, ओवरीज में एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं, ठीक है, एग्स। हर महीने वो एग का नंबर डिक्लाइन होता है, और 35 के बाद वो एग्स का नंबर बहुत रैपिडली डिक्लाइन होता है। सो वन इज द नंबर ऑफ एग्स अवेलेबल गेट्स रिड्यूस्ड। नंबर 2 इज क्वालिटी ऑफ एग्स, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट द नंबर, बट उन एग्स में कितनी कैपेसिटी है प्रेग्नेंट होने की वो भी कम हो जाता है। सो फर्टिलिटी डेफिनेटली डिक्लाइंस विद एज। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में fertility rates are much lower than Caucasian. Is there actually a difference in the fertility in our country as opposed to what we see in the Western world? And is it important to discuss this with your mother? मतलब आपकी मदर का क्या फर्टाइल पीरियड था, कब वो मेनोपॉज कर रही हैं, उससे हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी फर्टिलिटी क्या रहेगी? सो ये बात ठीक है कि इंडियन जेनेटिक्स थोड़े डिफरेंट है। हमारे यहाँ फर्टिलिटी डिक्लाइन पहले आता है बिफोर द वेस्टर्न विमेन, और फर्टिलिटी डिक्लाइन बहुत जेनेटिक भी है। सो जिस एज में आपकी मदर का मीनोपॉज हुआ था, हम ऐसे मानते हैं कि आपका मीनोपॉज रफली उसी अराउंड हुआ होगा। तो आपको बैक कैलकुलेट करना चाहिए कि मोस्ट फर्टाइल पीरियड में क्या रहेगा। करेक्ट, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो एग्जैक्ट। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डिस्कस दिस विद योर गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो आपके फर्टिलिटी टेस्टिंग कर सके और बता सके कि व्हाट इज रफली हाउ मेनी इयर्स यू गॉट लेफ्ट। आपने हमें बताया कि फर्टिलिटी डिक्लाइन करने लग जाती है आफ्टर 35। बियॉन्ड फर्टिलिटी क्या कोई रिस्क है कि लेट एज पे आप प्रेग्नेंट हो गए? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। सो 2 तरह के रिस्क हैं, वन इज टू द बेबी एंड वन इज टू द मदर, ठीक है। अगर हम बेबी की बात करें तो देयर आर मोर रिस्क कि उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होगी। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का मतलब है कुछ डिफेक्ट जो बर्थ से है, जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जो जेनेटिक होती है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिवीजन ठीक से नहीं होती है, इसलिए जो बच्चे पैदा होते हैं उनको डेफनेस, मेंटल इश्यूज होते हैं। दूसरी बात है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 35 years क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर मोर, spontaneous abortion is more. Then they also have higher incidence of medical complications in pregnancy. अगर आप नॉर्मली भी देखेंगे, जैसे एजिंग बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस बढ़ता है, डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ता है, मेटाबॉलिक। So after 35, same thing we see in pregnancy, higher chances of blood pressure, higher chances of preeclampsia. Preeclampsia is a complicated stage of blood pressure in pregnancy, जो मदर और बेबी दोनों के लिए घातक हो सकता है। होता क्या है प्लीज? सो प्रीएक्लेम्सिया में क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, प्लस यूरिन में प्रोटीन्स आते हैं, तो वो एक थोड़ा रिस्की होता है, एंड यू कैन थ्रो फिट्स ऑल्सो विच इज कॉल्ड एक्लेम्सिया। सो इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस देयर इज एन एज टू हैव डिलीवरी।
So there is also higher chances of operative interference. मतलब more chances कि आपकी डिलीवरी वेजाइनली कम होगी और सिजेरियन के ज़्यादा चांसेस होंगे. इंटरवेंशन की स्थिति ज़्यादा आ सकती है कि आपको कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए. So all of these complications are more when you're more than 35 years of age and you conceive. हम जब हम बात कर रहे थे कि ये ट्रेंड क्यों हुआ है, तो आपने ये भी कहा कि वन ऑफ द फैक्टर्स इज कि साइंस प्रोग्रेस कर चुकी है, हमारे पास अब मीन्स हैं कि हम लेट प्रेगनेंसी करें, जैसे आपने बोला आईवीएफ, प्लस आपने ये भी कहा कि एग फ्रीजिंग का ऑप्शन है. अगर हमने यंगर एज पे एग और स्पर्म फ्रीज कर लिया तो क्वालिटी तो अच्छी हो गई ना. तो अगर लेट प्रेगनेंसी हुई तो मतलब वो वाला फैक्टर तो निकल गया. So what do you have to say? Is this the right way? So there are 2-3 things. Hmm. एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग में क्या फर्क होता है. Hmm. ठीक है, एग फ्रीजिंग इज कि हमने आपको सब इंजेक्शंस दिए, एग्स बाहर निकाले और वो एग्स हमने फ्रीज किए. द अदर इज एम्ब्रियो फ्रीजिंग वेयर यू नो हु योर पार्टनर इज. तो हम उन एग्स को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके फ्रीज करते हैं. ठीक है, तो अगर आपके पास एक पार्टनर है, एक हस्बैंड है, तो वी वुड प्रेफर टू डू एन एम्ब्रियो फ्रीजिंग रादर देन एग फ्रीजिंग. ठीक है, बिकॉज एम्ब्रियो फ्रीजिंग के रिजल्ट्स एग फ्रीजिंग से बेटर हैं. नेक्स्ट यू टॉक्ड अबाउट इज स्पर्म फ्रीजिंग. नाउ मेल फर्टिलिटी डज नॉट डिक्लाइन सो शार्पली, so you don't really need to freeze the sperms. Definitely age has the biggest impact on the quality of the eggs. तो अगर आपको है कि आपकी शादी लेट होगी या प्रेगनेंसी लेट करेंगे, इट इज ऑलवेज बेटर कि यू फ्रीज योर एग्स एट एन अप्रोप्रिएट एज. 40 पे अगर आके मुझे बोलेंगे कि मेरे एग्स फ्रीज कर दीजिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो इट इज प्रॉबेबली early 30s where you should start thinking of egg freezing if you're not planning to have a baby anytime soon. अर्ली 30s. व्हाट इफ मैंने सोच ही लिया है कि भाई अभी तो कोई पार्टनर नहीं है पर बेबी तो करना है, तो 20s में ही कर लें एग फ्रीज. ठीक है, बट नॉर्मली हम मानते हैं कि अर्ली 30s वुड बी अ बेटर टाइम, बिकॉज बाय दैट टाइम यू अंडरस्टैंड कि आपको कब शादी करनी है या कब बच्चा करना है. अगर हम अर्ली 20s प्रोपोगेट करेंगे तो फिर सभी एग फ्रीज करा रहे होंगे ना. That's not recommended. अब अभी तो कोई कॉस्ट होगा ना. इट्स नॉट हाउ एक्सपेंसिव आर दीज, मतलब जो भी आप प्रोसेसेस बता रहे हैं, आईवीएफ हो गया या एम्ब्रियो फ्रीजिंग हो गया या एग फ्रीजिंग हो गया, बिकॉज यू देन हैव टू कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स, राइट? So see, the cost depends on the city and the place where you choose to have it. Now, egg freezing और IVF में क्या फ़र्क होता है ये भी पता होना चाहिए, राइट? IVF इज सिंपली अ प्रोसेस जहाँ पे हम आपकी ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं. नॉर्मली क्या होता है, हम एक एग रिलीज होता है हर साइकिल में. सो IVF में हम कोशिश करते हैं कि 10 to 12 एग्स हमें मिल जाएं. सो वो एग्स जब रेडी होते हैं हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करके रखते हैं. सो एग फ्रीजिंग का प्रोसेस और IVF का प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. ठीक है, अब उस पे एक नंबर ऑफ कॉस्ट तो लगाना मुश्किल है, बट ऑन एन एवरेज वी वुड से कि IVF की कॉस्टिंग इज अराउंड 2 lakhs. सो एक पर साइकिल, एंड एग फ्रीजिंग की कॉस्टिंग फिर वो पर ईयर ऐड होती है कि आपको कितने साल के लिए, क्योंकि जो एग्स फ्रीज होते हैं उसको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किया जाता है और उसके लिए एक स्टोरेज की जगह चाहिए होती है. सो उसकी फिर कॉस्टिंग डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर हॉस्पिटल और वॉट एवर IVF सेंटर यू आर चूजिंग है. अगर रेकरिंग कॉस्ट है. हाँ जी, तो हर साल आपको ये एवरी 6 months और एवरी 1 year वॉट एवर द IVF सेंटर जिस जो भी प्रोटोकॉल है वो आपको देने पड़ेंगे. आप कह रहे हो कि अब हम लेट प्लान कर रहे हैं, तो इसमें अगर मैं प्लानिंग में जाती हूँ, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं कि कैन वी डू अ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन टू एटलीस्ट ट्राई टू कीप आवर फर्टाइल इयर्स लॉन्गर? डेफिनेटली आप अपना न्यूट्रिशन ठीक रखिए, आप अपना वेट ठीक रखिए, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स. मतलब IVF के सक्सेस में सिर्फ एज नहीं, वेट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. रेगुलर एक्सरसाइजेस, यू स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप अल्कोहल, बिकॉज स्मोकिंग एक्चुअली किल्स द गेमेट्स. चाहे स्पर्म की बात करें हम या एग की बात करें, सो दैट शुड बी स्टॉप. और अपना रेगुलर हेल्थ चेक कराइए देखने के लिए कि यू आर हेल्दी इनफ. ये नहीं है कि आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो गई, ये हो गया. सो उसके लिए आपको रेगुलर चेक कराना, और जो भी बीमारी है फिर उसका प्रॉपर और एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेंगे. सो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पेरेटिव कि आप ये करेंगे तो आपका फर्टिलिटी ज़्यादा देर तक रहेगा.
लेट जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनका क्या इमोशनल रोलर कोस्टर अलग होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी ही एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, क्योंकि हार्मोन्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी हैं, इट्स फुल ऑफ हाइज एंड लोज। तो लेट प्रेगनेंसी में क्या ये और भी ज्यादा सिवियर होता है? यस। और क्यों? देखो ऐसा होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी डिले कर ले, हम्म। ठीक है, मान लीजिए आप डिले कर रहे हैं, हम्म। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल एंड सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस तो वही रहती हैं। इंडिया में ना दो वो हैं, द लास्ट जनरेशन स्टिल हैज दैट एक्सपेक्टेशन कि डॉटर इन लॉ विल कम, विल गेट प्रेग्नेंट, बट कपल एक्सपेक्टेशंस आर वेरी डिफरेंट। सो आई हैव हैड पेशेंट्स जो बोलते हैं कि हमने बाहर जाना बंद कर दिया है, वी स्टॉप गोइंग टू मैरिजेस एंड ऑल बिकॉज आवर रिलेटिव्स आर गोइंग टू आस्क अस if you go somewhere and the only question that you are asked is why you're not having a child or when are you going to have a child or let me give you an infertility specialist number, you don't really enjoy that outing. So that definitely is something which impacts them. The other thing is self doubt bhi hota hai. So because you have a woman who wants to conceive, but you also have a person who says ki okay, abhi to my career is at this particular point, let me not have a child. So that conflict we have often seen in women who decide to delay their pregnancy. They are always conflicted कि हम क्या करें. So एक उसमें फिर वो भी आता है कि कहीं lots of patients will come and say कहीं doctor, do you think I'm selfish or do you think I'm only bothered about myself? The other thing is also the couple thing, because there are two people involved. Now there are situations when one wants to have a child and the other doesn't want to have a child. So then it also becomes a relationship issue between the couple. So definitely उनका एक roller coaster अलग ही होता है. And then when they do decide to have a child, it is a different spin-off. एक तो हर महीने की एंजाइटी हो रही है कि प्रेगनेंसी है नहीं है, क्यों नहीं हो रही है, and they get sometimes so keyed up कि stress fertility, there is a term called stress infertility कि आप सिर्फ स्ट्रेस के कारण प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं. ये सच है? ये बिल्कुल सच बात है. तभी आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी ना कि हमने बेबी अडॉप्ट किया और हम अगले महीने प्रेग्नेंट हो गए. सो इतना लकी था बेबी. दैट इज सिंपली बिकॉज द स्ट्रेस यू हैड बीन कैरिंग हर महीने टू गेट प्रेग्नेंट, इट जस्ट गोज ऑफ. सो आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं. सो इनका एक स्ट्रेस इनफर्टिलिटी इस एज ग्रुप में डेफिनेटली आ जाती है. द अदर थिंग इज कि एंग्जाइटी आ जाती है कि चलो हम प्रेग्नेंट हो भी गए. व्हेनेवर दे गेट प्रेग्नेंट दे हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ एंग्जाइटी ऑल टुगेदर. सब ठीक होगा कि नहीं, बच्चे में एबनॉर्मेलिटी तो नहीं थी, अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज सब लोग आजकल गूगल पढ़ते हैं, सब लोग, और आप जैसे ही लेट प्रेगनेंसी भरेंगे ये सब आएगा. तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग journey of joy, that pregnancy actually becomes full of anxiety. So हर अल्ट्रासाउंड के पहले उन्हें एंजाइटी शुरू हो जाती है, सब कुछ ठीक आएगा कि नहीं आएगा. एंड गॉड फॉरबिड अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उस प्रेगनेंसी में, अबॉर्शन हो जाता है या कुछ भी और दिक्कत आती है, तो वो जो सेल्फ ब्लेम का गेम है वो एक अलग ही लेवल का होता है. बट इसमें ना कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं लेट प्रेगनेंसी में. आई हैव सीन समटाइम्स द कपल इज मोर सेटल्ड, फाइनेंशियल सेटलमेंट होता है, तो सो दे आर नॉट रियली बॉदर्ड कि दैट पार्ट एटलीस्ट इज सेटल्ड. Then they are more educated, they are at a different maturity level, so they can navigate all of this in a much more calmer fashion. I mean, let's say I have a couple who is about 38 versus a couple who is about 23. The way they look at the pregnancy is totally different, their handling is different. So कुछ positives हैं, कुछ negatives हैं. आपको लगता है कि ये सोसाइटल कंस्ट्रक्ट की वजह से भी है? क्योंकि पहले क्या होता था ना, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो एक सपोर्ट सिस्टम होता था. अगर जल्दी बच्चे भी हो जाते तो पल जाते थे. अब ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज है, देन यू फील कि लेट मी हैव द मीन्स टू बी एबल टू manage this, right? Do you think that is also a reason why people are thinking ki I want to be more set? Absolutely, I think it plays a very big role. क्योंकि अल्टीमेटली अगर हस्बैंड भी काम कर रहे हैं और वाइफ भी काम कर रही है, दे आर बोथ वर्किंग लॉन्ग आवर्स, बच्चे को कौन देखेगा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहले शायद नहीं आता था. मदर इन लॉ होती थी, मदर होती थी, तो और बच्चे होते थे घर में, आपस में मैनेज होता था. अभी तो मुश्किल ही है. नॉट जस्ट दैट, आप पार्क में भी नहीं भेज सकते अपने बच्चे को अकेले खेलना. सो यू नीड अ मेड, then the reliability of maid. So all of those questions are definitely there and are impacting couples at whatever age they choose to get pregnant. आपने कहा कि स्ट्रेस है,
or it affects your pregnancy also. What do you suggest to women to cut their stress down? First task would be to find out what is it that is causing the stress. For some, it will be work. A lot of women do have a work-related stress. So then we try and tell them कि आप maybe ask your, office or wherever you work कि आप half day कर सकते हैं क्या, आप hybrid कर सकते हैं. आजकल तो work from home भी है, तो whether you can choose hybrid because transport का time कम हो जाता है. आप whether you can take some off. I mean, if you have any earned leave or whatever which you can use in this time, maybe go to a less stressful project, जिसमें कम deadlines हो. So that is one way. The other way is कई बारी relationship stress होता है. Like I said, wife wants a child, the husband doesn't want a child, and there are so many times they will fight on this, and then we need to talk to their husbands, spouses, in-laws, family. कई बारी they are not getting along well and they have an accidental pregnancy. So that's a completely different thing. The third thing is, like I said, हर ultrasound के पहले stress हो जाता है. So it is the anxiety about how the pregnancy will go forward. So then we will try and counsel them that it is just like life. आपको नहीं पता 5 साल बाद आपकी जिंदगी में क्या होना है, ऐसे ही हमें नहीं पता 5 महीने बाद क्या होगा. You have to learn to take the day as it goes, right? So sometimes it is, I have seen women getting over stress कि my maid is going on leave, तो मुझे खाना कौन देगा? So then we have to formulate those strategies कि you can probably order out. So you have to find out the trigger point of stress. Okay. The other thing that we do is, a lack of sleep is something which is very, very common these days. And which I think is a cycle also. So you don't sleep well, you become very irritated, and then, the whole day goes bad and it just goes on. So for them, we tell them that you have to sleep on time. Please switch off your mobiles. 2 घंटे सोने से पहले आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिए. Which is easier said than done, but then yes. And like you said, don't watch horror shows and things on TV. That also somehow creates stress in your mind. Third thing is how to deal with the stress. So meditation, soothing music, develop some hobby, talk to a friend. And if all of this is not working out, please get in touch with a mental health expert who has the ability to make you cross this particular period of time. So we have psychologists in our hospital who help our patients out. But stress से क्या आपकी pregnancy negatively impact हो सकती है? Is there any science to it? Because now people are investigating कि आपके मतलब body chemistry बदल जाती है stress से, और ये chemistry आपके बच्चे को भी affect करेगी क्योंकि वो placenta के through blood जा रहा है. Is there any truth to this? It is true. I really believe it is true. I mean, look at how science is evolving. It has now come to the fact कि आपका जो पूरी लाइफ है वो 2-3 चीजों पे, 2-3 फेजेस पे डिपेंड करते हैं. एक तो आपकी जीन्स पे कि हाउ गुड बैड दे आर, मतलब हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ मैं. द अदर थिंग इज द एंटीपार्टम पीरियड, एपिजेनेटिक्स, कि प्रेगनेंसी में हाउ डिड इट गो, राइट? सो both physical and emotional. We have seen that women who are overweight or women who have more of processed food, their babies have higher chances of developing diabetes and heart disease even later on, even if they और normally yes, normal birth हुआ yes, पर आगे चल के फिर भी impact आएगा. ठीक है. And the third time is how you handle the baby after delivery. So there are 3 things. Genes you cannot control, right? But the rest too are in your hands. So pregnancy, I feel, should be a period of time where apart from nutrition and exercise, mental health is very important. If you are very stressed out, it definitely has an impact on pregnancy. And on your child. And on the unborn baby. अच्छा, आपने ये भी कहा था कि couples अपने आप को socially ostracize कर लेते हैं क्योंकि they don't want to answer these questions. इनके लिए कोई strategies हैं कि मतलब आप एक तरफ कह रहे हो यार stress मत लो, happy रहो, normal life जियो, और फिर आप कह रहे हो यार वो कहते नहीं यार बाहर जाते होते सवाल पूछते हैं, added stress. How can one navigate this? So see, one, so you have to be very clear in your mind what is it that you are looking for. So many times women come and say that they are only calling me out कि pregnancy नहीं हो रही है.
it may be in-laws, it may be a wider family, it may be friends. So I ask them that what is it that you want? You want to make them happy or you want to be happy? So if you have made a choice, I think you should stick to it. आप उन सर्कल्स में मत जाओ ना जहाँ पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं. See, there is a close friend circle and a family circle. You can go out with people whom you can talk to, whom share your values, who are okay with your choices, and probably avoid people जिसके साथ you are not comfortable. Basically, you have to find your vibe. Yes. Third, talk to each other. That is very important. When that talk is missing, it only multiplies the stress. So if you both are on the same page, then it's fine. And then, like I said, if you're still having a problem, you can consult a psychologist. They always help out. जो आप कह रहे थे कि प्लान कर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि हम लेट प्रेगनेंसी करेंगे जब हम सेटल हो गए हैं, तो इस पे प्री कंसेप्शन, न्यूट्रिशन, काउंसलिंग, हेल्थ चेकअप्स, उसका क्या रोल है? Any important tips for this couple would be कि पहली बात आप अपना मेडिकल चेक कराइए. बिकॉज एज यू एज बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होता है जो उन्हें भी नहीं पता होता. तो आप एन एनुअल मेडिकल चेक, दिस इज एन एनुअल हेल्थ चेक. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ फर्टिलिटी चेक. इट्स अ रेगुलर Regular normal health check. Second thing is you try and maintain an optimum weight. Like I've always said, that impacts your fertility, that impacts how your pregnancy is going to go. Third, change your dietary habits. Because by this time, you've already formed a base. आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, आपको ये कुछ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है to get back to a healthier diet. Stop smoking and alcohol. Fifth, start taking folic acid supplements. So like we said कि chromosomal abnormalities ज़्यादा होती हैं. Folic acid is something जो spinal deformities prevent करता है babies में. So you should start it 3 months prior. Sixth, know about fertility. ठीक है, because at this particular age fertility issues होते हैं. So you should know what your cycle is, when is the fertile period. You can check for ovulation. आप किसी ऐप के साथ डाउनलोड करके उसमें ओव्यूलेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं. आप ओव्यूलेशन किट्स यूज कर सकते हैं. सेवेंथ, इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, you visit a gynecologist to get a fertility testing done. So we do check for ovarian reserve in this particular age group. Ovarian reserve testing एक तो ब्लड टेस्ट से होता है जिसमें हम AMH करते हैं, और एक हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एग्स यू आर कैरिंग. Also, please also get a semen analysis done, because India में अभी भी fertility is primarily women dependent narrative. So you need to change that. Your partner is equally responsive. So आप semen analysis कराइए, देखिए sperm count वगैरह ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. और normally after the age of 35 we say कि अगर आपको 6 months हो गए हैं और pregnant नहीं हो रहे, please visit a fertility specialist to figure out what is wrong and what can be done. पर आजकल तो इट्स बिकम हेल्थ इन योर हैंड्स कि जैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि लेट प्रेगनेंसी करनी है, तो आप अपनी पीरियड्स को मॉनिटर कर सकते हो, फर्टिलिटी को चेक कर सकते हो. ओवन यूज़ है, आप अपनी फर्टाइल विंडो चेक करो, ओव्यूलेशन टेस्ट स्ट्रिप्स यूज़ करो. एंड आई थिंक इट्स कमिंग ईजियर बिफोर यू अप्रोच योर डॉक्टर कि आई एम स्ट्रगलिंग. एटलीस्ट यू नो योर सेल्फ कि मेरी साइकिल इतनी लंबी है, उसमें एवरेज these are the days when I'm more fertile, and then if I'm having a problem I can go to a doctor. Agreed. So you can try for a normal pregnancy for the first 6 months, but if you're having any problem, and we are talking only after the age of 35, right? And if you're having any problem, if you have history of, let's say, polycystic ovary disease or fibroids or endometriosis, you should approach your fertility specialist earlier. Do not just sit at home. ऐसा नहीं है कि आप 35 हो फिर आप सोचते हो कि हम pregnant हैं, फिर 2-3 साल आप कोशिश में लगा दो, and then you reach to us at 38. When your fertility is significantly going down. You have to remember, Indians में fertility decline जल्दी होना शुरू होता है. So 35 is already a little late for us. So be careful, form a timeline कि हम इतना टाइम से खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो we will go and get whatever help is required. बढ़ती उम्र के साथ आपकी फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है, बहुत शार्पली नीचे आती है. कैसे पता लगता है कि मेरी फर्टिलिटी इम्पैक्ट हो गई है? इट कांट बी वन साइज फिट्स ऑल. किसी का हो सकता है
बाद में शुरू हो, किसी का थोड़ा जल्दी शुरू हो, तो कैसे पता लगे कि हमारी फर्टिलिटी कहाँ स्टैंड करती है? सो जो हम नंबर ऑफ एग्स बेसिकली बोलते हैं उसको मेडिकल टर्म में ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं. ओवेरियन रिजर्व मीन्स हाउ मच रिजर्व यू हैव इन योर ओवरीज और हाउ मेनी एग्स यू हैव इन योर ओवरीज. इसको असेस करने के लिए हम 3 फैक्टर्स देखते हैं. वन इज योर एज which has a huge impact. The other is we see your AMH levels. AMH is a hormone that is an anti-Malarian hormone. के वो हम ब्लड से टेस्ट करते हैं, उसका लेवल हम देखते हैं. AMH जो है छोटे छोटे फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है ओवरी में, तो उसका लेवल हमें बताता है कि आपका कितने एग्स हैं. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड देखते हैं जिसमें दैट इज नॉर्मली डन ऑन द सेकेंड और द थर्ड डे ऑफ योर पीरियड्स, और हम देखते हैं कि कितने एग्स हैं आपके राइट ओवरी में, कितने हैं आपकी लेफ्ट ओवरी में, कितने हैं. इन तीनों चीज को हम फिर कॉर्पोरेट करके एक अंदाजा बनाते हैं कि ओवेरियन रिजर्व क्या है. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये कुछ भी चीज अपने आप से डेफिनेट में नहीं है. ठीक है. It's a combination of these. combination of things. Now, let's say you are 25 and you have a low AMH. Maybe I will not be so worried. But you are 35 and you have a low AMH, it will be worrisome. But then when I do an ultrasound on you and I see that there are 7 eggs on one side and on 8 eggs, that will give me some measure of relief. So they are not absolute things, but they are relative things. We take all of them, we form a picture, and then we find out कि भाई this is your ovarian reserve, and that is how we counsel the patients कि भाई आपकी fertility किस लेवल पे है. थैंक यू सो मच डॉक्टर मधु फॉर स्पीकिंग विद अस. आपने हमें इतना कुछ अच्छी से समझाया कि जो लेट प्रेगनेंसीज होती है उनकी क्या प्रोज एंड कॉन्स है. मैं यही होप कर रही हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो खुद अपना प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनको कब प्रेगनेंसी करनी चाहिए, कैसे प्लान करनी चाहिए और क्या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी सेफ एंड साउंड रहे, उनके बच्चे हेल्दी और हैप्पी रहे. थैंक यू सो मच डॉक्टर मधु फॉर स्पीकिंग विद अस. प्लेजर हैविंग यू विद अस ऑन द शो. Thank you, Anisha.